Bismillahirrahmanirrahim. Let us start the lecture. Or as I see it, on my machine, around 20 of the students are available. तो होपफुली बाकी भी दरमियान में ज्वाइन कर लेंगे, अदरवाइज वी विल हैव टू वेट और चीज़ें डिले हो जाएगी. आई होप आई एम ऑडिबल और स्क्रीन जो है वो आपको नज़र आ रही है. अगर किसी को नज़र नहीं आ रही तो कोई इशू नहीं है, उस टाइम पे आप अपना माइक अनम्यूट करके यू कैन लेट मी नो. और वाइल आई एम टीचिंग ऑनलाइन, तो इफ somebody has a question, please feel free to ask anytime during the lecture. Simply अपना mic unmute कर लें और you can ask the question. Okay. Last time what we covered was queues, or if you recall, so we had covered the basic operations of the queue, where I told you that in a queue, the operation which inserts an item inside the queue is called in queue operation, and the operation or the function which removes an item from the queue is called the dequeue operation, right? If you see here, okay, let me okay, sorry, दोबारा बोले. रिकॉर्डिंग असल में ना, व्हाट आई हैव डन इज आई एम रिकॉर्डिंग इट थ्रू अनदर सॉफ्टवेयर, जो कि मेरे प्लान ये है कि मैं इसको यूट्यूब पे रख लूँगा. आई डोंट नो, बट ओके, लेट मी ट्राई कि अगर इसको हम यहाँ से, मेरे पास रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आ नहीं रही, तो लेट इफ़ यू गिव मी अ सेकेंड, लेट मी सी अगर यहाँ पे आ जाए. मीटिंग ऑप्शंस, यूट्यूब वाला भी ठीक है. हाँ, वो एक्चुअली वो दूसरे सॉफ्टवेयर से हो रहा है, तो वो हो रहा है, लेकिन चलें, अभी तो चले दरमियान में है, तो इसको मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करता अपने लेक्चर को. नेक्स्ट वाले में आई विल सी कि मैं दोनों से रिकॉर्ड कर लूँ, राइट. तो अदरवाइज वो दूसरा वाला हो रहा है, तो वो मैं आपको फिर बाद में लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है. चलें, लेट मी कंटिन्यू विद व्हाट आई वाज सेइंग. पेन ढूंढने के चक्कर में हूँ. ओके, now if you see here, we have this in queue operation and the dequeue operation. और यहाँ पे अगर आप देखें तो we have the front pointer. Temporarily I'm saying it pointer, maybe we represent it using an integer variable, where f may be used for front and r may be used for rear. और यहाँ पे f और r में इस array का जो है इंडेक्स हमारे पास सेव होगा, ठीक है. तो ये खैर ये बातें मैं लास्ट टाइम बता चुका था. तो दिस इज द स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्यू. अगेन मैंने आई हैव नॉट explicitly told you about the C++ code of how to implement a queue, which I'll be telling you today. But before going into the static implementation of the queue, let us understand the dynamic implementation of the queue, which is done using linked list. और लिंक लिस्ट में अगर आप देखें तो होगा हमारे पास सिंपल यही काम कि हमारे पास नोड्स होंगे और वी विल हैव टू एंड्स, यानी कि एक हमारा फ्रंट का एंड होगा और एक हमारा इसको रेयर कह लें या बैक कह लें, रेयर का एंड होगा, ठीक है. और हमारे पास अगर एक इफ वी विल बी हैविंग अ लिंक लिस्ट, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इफ यू वांट टू डीक्यू an item from the linked list, we will be removing it from the front. But if you want to insert an item in the linked list, we will be inserting it at the rear of the linked list. So in this way, this linked list based implementation will basically represent a queue. Yeah, to summarize this, the linked list based implementation of the queue will insert a node at the head as an in queue operation, and insert a node at the end
as an in-queue operation, and it will remove a node from the start of the linked list as a dequeue operation, right? So initially the queue will be empty, of course, and the front pointer and the rear pointer, both of them will be pointing to a pointer which will be null, as you can see here. But once we create a single node, which will be the first node, both the front and the rear pointer will be pointing to the same node. But once we insert another node, so the front pointer will not change, it will remain intact there. However, the new node which is created, the rear pointer is going to point to that particular uh, नोट, राइट. सो इफ यू सी हियर, तो हो ये रहा है हमारे पास कि जितनी भी इंसर्शंस हैं वो लिंक लिस्ट के एंड के ऊपर हो रही है. एंड इफ वी हैड टू डीक्यू समथिंग, तो हमारे पास जो इसके फ्रंट पे जो वैल्यू मौजूद है ये हमारे पास डीक्यू हो जाएगी, राइट. नाउ कमिंग टू द कोड, although अगर if you see here, I've told you about the static implementation of the queue, and then I've told you about the dynamic implementation of the queue. Now here I'll be covering the code, C++ code of the dynamic implementation of the queue first. और अगर आप इसको देखें तो you will see that we have inside this code, this basically is a class, और इस class में अगर आप देखें this is a structure. So what does this structure represent? It represents a node. It represents a node which will be a node of a linked list basically. और हमने इस linked list को use करके एक queue बनाना है. And if you see here, this structure is called the queue node. Within this structure we have an integer type variable value and a pointer to the next node, right? So this is a simple node, and if you see the next variable of the class, here we have a pointer named as front, which is of type queue node, इस type का ये pointer है, and we have another pointer named rear, which is also of the type queue node, right? तो ये हमारे पास दो pointers हो जाएंगे, जो एक pointer queue के front को point कर रहा होगा और दूसरा pointer जो है वो queue के end को point कर रहा होगा. ये front को point कर रहा होगा और ये वाला इसके end को point कर रहा होगा, right? और इसके अलावा we have an integer variable which is called number of items. num items का declare हुआ है, but it is the number of items. तो ये track कर रहा है कि एक queue के अंदर कितने items हैं. So what will be happening कि जिस वक्त इस queue का in queue का function call होगा, तो उस वक्त ये number of items जो है what will happen to this will be incremented by 1, यानी कि इसमें number of items एक एक add होता जाएगा. और जब इसका dequeue का function call होगा तो इसको हम माइनस करते जाएंगे. तो इन दिस वे वी कैन इजीली ट्रैक कि एक क्यू के अंदर कितने आइटम्स हैं. अच्छा, ये जो हम करेंगे ये हम सिंपली कर लेंगे. अदरवाइज फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ क्यू और उसमें मैं ये बना रहा हूँ यहाँ पे, एंड वी हैव लेट्स से 4 nodes in this queue, which is a dynamic queue, or if now we want to track that how many items are there in this queue, so we will have to write a loop जो कि पहले इस नोड को चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, then it will go here, then it will go here. तो अच्छा, अब ये अगर आप देखें तो this is its cost is order of n, ठीक है. तो ये कॉस्ट बचाने के लिए what we have done here is कि हमने number of items का एक वेरिएबल बना लिया. तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें ये
आइडेंटिफाई करना है कि एक क्यू के अंदर कितनी वैल्यूज मौजूद हैं या कितने नोड्स मौजूद हैं, तो हम सिंपली इस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी वी विल डिस्प्ले दैट। तो वो जो काम हमारे पास ऑर्डर ऑफ n में हो रहा था वो अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा, ठीक। तो तो ये दिस इज इन क्यू फंक्शन, इसके डिटेल पे जाते हैं। दिस इज डी क्यू फंक्शन और ये इस क्यू का कंस्ट्रक्टर है और ये इस क्यू का डिस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है क्लास का, कि जैसे ही क्लास का इंस्टेंस बनता है द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने होते हैं वो हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं द कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड। और डिस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा हो, यानी कि स्कोप से वो बाहर जा रहा हो। एंड फिर विद इन दिस क्लास देयर इज अ फंक्शन इज एम्प्टी, जो कि हमें ये बता रहा है कि आया क्यू एम्प्टी है या नहीं है। इन दिस पर्टिकुलर केस क्यू एम्प्टी होगा कैसे पता चलेगा, ज़रा सोचें, ज़रा सोचें। डिस्काउंट ये क्यू एम्प्टी है तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें क्यू एम्प्टी है ऐसे पता चलेगा कि इनिशियली हमारा जो ये फ्रंट का पॉइंटर है और ये रियर का पॉइंटर है, ये दोनों जिस वक्त हमारे पास क्या होंगे, नल होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि क्यू क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। अच्छा, इफ यू सी हियर वी हैव फंक्शन नेम्ड एज इज एम्प्टी बट वी डू नॉट हैव अ फंक्शन लाइक इज फुल, क्योंकि क्यू अगर एम्प्टी होता है तो क्यू फुल भी होता है। तो इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन में since we are implementing this queue using a dynamic implementation, so we are not worried about queue being full, क्योंकि queue कभी भी full नहीं होगा, we will always have some memory available और run time पे हम इसमें nodes ऐड करेंगे। हाँ, ये एक अलग बात है कि if you create so many nodes कि आपकी जो RAM है वो full हो जाए, ठीक है, then the queue is full, but again in that particular case the system operating system is going to generate you a warning that you are low of memory. You don't need to put that function is full here, क्योंकि in that case queue फिर भी full नहीं होगा, वो तो operating system sorry system की जो RAM है वो full होगी। and then we have another function which is called make null, और make null basically करेगा क्या कि एक क्यू के अंदर जितने भी नोड्स हैं बारी बारी सबको डिलीट करता जाएगा। तो लेट अस गो टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूज। अच्छा, अभी पहला जो इसका फंक्शन है ना, इफ यू सी हियर, ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये क्लास यहाँ पे एंड हुई है। इसका जो कंस्ट्रक्टर है इसका नाम अगर आप देखें, दिस इज डायनेमिक DYNINTQ, राइट। सो वी आर डिफाइनिंग दिस कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास। तो आउटसाइड द क्लास इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्लास का नाम लिखेंगे, दिस इज नेम ऑफ द क्लास, दिस इज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर दिस इज नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर। ऑफ कोर्स जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, तो दैट इज व्हाई दीज आर डुप्लीकेट। and within this constructor if you see here we are assigning null to the front pointer and we are assigning null to the rear pointer, और यहाँ पे we are assigning 0 to the number of items, क्योंकि जिस वक्त एक लिंक लिस्ट बनेगी तो जो फ्रंट का पॉइंटर है और जो रियर का पॉइंटर है ये दोनों जो है वो नल एक पॉइंटर है, क्योंकि इसको कोई नोड बना ही नहीं है ना, तो इस वजह से। और चूंकि कोई नोड नहीं बना तो नंबर ऑफ आइटम्स भी इसमें क्या है, 0 है, राइट। देन इफ यू सी द डिस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्यू, तो इसके अंदर मेक नल का फंक्शन कॉल हो रहा है, और मेक नल के फंक्शन में हम थोड़ी देर में जाते हैं, वेयर वी विल सी हाउ दिस मेक नल फंक्शन वर्क्स। नाउ if you see here this in-queue function or if you see this in-queue function here, तो दिस इज द मेन फंक्शन। माइंड इट कि हम अभी ये जो मेक नल का फंक्शन है वी आर येट टू कवर दैट, लेकिन पहले in-queue का फंक्शन आ गया तो इसको देख लेते हैं। Start now this is receiving an integer type variable num, और इनिशियली, और अगर आप इस कोड को वैसे, मतलब मैं इसकी डिटेल तो कवर करता हूँ, लेकिन इफ यू सी दिस कोड, दिस इज डिट्टो कॉपी ऑफ द ऐड नोड एट
tail function, right? But since we have two pointers, so we need to manipulate both of them. So let me explain this function in detail. हमारे पास we have created a new node pointer. तो होगा क्या कि हमारे पास अब आई एम नॉट श्योर कि मैं जो राइटिंग कर रहा हूँ ये नज़र आ रही है आपको कि नहीं, तो मैं इस पावर पॉइंट वाला यूज़ कर लेता हूँ. तो इफ़ वी सी हेयर एक नया नोड बन जाएगा हमारे पास. इट विल बी लाइक दिस, इट विल हैव टू पोर्शंस और वी विल कॉल इट न्यू नोड. ठीक है, ये न्यू नोड बन गया. This is the new node. Then what is the function saying? That new node place num in the new node value. For example, num was 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा. And place null in the next. So इधर यहाँ पे क्या आ गया? Next आ गया, right? Now it says that if q is empty. अच्छा, अभी if is q is empty, this function is created by us. So let us first check this is empty function. Now if you see here, this is empty function. It says that if number of items. अच्छा, ये जो condition होती है ना, anything which is non-zero, for example 5, for example 6, for example -1, anything which is non-zero is interpreted as true, right? Anything non-zero is interpreted as true, and only zero. Now this is true, and अगर यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो होता तो दिस वुड हैव बीन फॉल्स. ठीक है, तो ये बूलियन कंडीशन है. तो इफ नंबर ऑफ आइटम्स इज जीरो, एंड इफ यू सी हियर इन द कंस्ट्रक्टर इनिशियली हमने नंबर ऑफ आइटम्स को क्या किया हुआ था, हमने जीरो किया हुआ था. ठीक है, तो जब हम इधर आएंगे इफ इट विल सी इफ नंबर ऑफ आइटम्स विच विल बी जीरो, सो इट विल रिटर्न अस फॉल्स. अदरवाइज 5, 6 या जो भी होती है इसमें वैल्यू, इट वुड हैव रिटर्न अस ट्रू. सो इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज गोइंग टू रिटर्न अस फॉल्स. तो हम वापस फंक्शन पे जाते हैं, यहाँ पे थे हम, एंड इट सेज इज एम्प्टी एंड दिस इज गोइंग टू बी false. ठीक है, यानी कि empty. wait a second. Okay, is empty, it is going to be false, right? तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास and if you see here, यहाँ पे हमें ये रिटर्न कर रहे हैं, it should have been true rather. So in this part, I think this condition, before uploading, I'll be fixing it, because if number of item, it should be this should be actually true. यहाँ पे ये false है ना, this should be true actually. So before uploading the lecture, I'll be fixing this statement, क्योंकि कोई question पूछ रहा है is empty, it should be true. तो खैर it's just a matter of the switching the statements. So this will become true. And what will happen, that the front pointer and the rear pointer, they will both be pointing to this newly created node, right? So this is how this enqueue operation is performed. Now let me repeat this enqueue operation with another example, where we will be having an already created queue with multiple nodes. क्योंकि अभी जो हमने ऐड किया है तो ये हमारे पास एक ही नोड था. If you see here, हमारे पास this is an already created queue. For example, it has value 7, it has value 8, this one has value 9. ठीक है, और since ये हमारे पास पहले से बना हुआ होगा, तो हमारा जो फ्रंट का पॉइंटर है वो हमारे पास कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, और जो रियर का पॉइंटर है इट विल ऑलरेडी बी पॉइंटिंग टू this place. ठीक है, and then sorry, then we will create a new node, or just to demonstrate, let us assume कि हम new node को value दे देते हैं 11, and let me create this new node. और जब ये new node बनेगा using these 3 lines, तो we will have 11 here, right?
नाम इसमें आ जाएगा और न्यू नोड के नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। सो फार दिस नोड हैज बीन क्रिएटेड बट इट हैज नॉट बीन अटैच्ड टू दिस क्यू। अच्छा, क्यू में हमें पता है वैसे ज़बानी कि ये इस जगह पे आना चाहिए, ठीक है, बट वी हैव टू अटैच इट। नाउ इट विल कम हियर, विल सी इज क्यू एम्प्टी, एंड इफ यू सी हियर क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि इसके नंबर ऑफ आइटम्स अब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास इस वक्त होंगे 3। 3 इसलिए होंगे क्योंकि 3 ये भी ऐड हुए हैं, ये जो आखिरी वाला है ये भी ऐड नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि बन गया है लेकिन लिंक लिस्ट के साथ, एक्चुअली इट हैज़ नॉट बीन अटैच्ड। सो इफ़ यू सी इट सेज इफ इज एम्प्टी। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ आइटम 0 नहीं होंगे, तो जब 0 नहीं होंगे तो अच्छा, ये दोबारा बता दूं कि ये उल्टा होना चाहिए, दिस शुड बी ट्रू, this should be true and this should be false. I'll be fixing that before uploading to the CMS. तो यहाँ से अब चूंकि नंबर ऑफ आइटम्स नॉन जीरो होंगे, 3 होंगे, तो हमारे पास इसने क्या रिटर्न कर देना, फॉल्स। जब when it will return false here, तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी एग्जीक्यूट नहीं होनी, this will come to else and it says that rear के नेक्स्ट में आप किसको इंसर्ट कर दो, न्यू नोड को इंसर्ट कर दो, एंड द rear will now be, instead of pointing here, this rear is going to point here, ठीक है। but this function does not end here. If you see the last line, what does it say? It says num plus 1, num plus plus. So instead of 3 we will have 4 in the number of items. So this is how this in queue operation is performed. अच्छा, अब let us see, अच्छा ये मैं बात दूँ मेरा, if you guys allowed, जो कि आई एम श्योर कि आप लोग सारे अल्हम्दुलिल्लाह सो रहे होंगे, मैं इसको ना ठीक कर देता हूँ, ओके, फॉल्स, ठीक है, ये इसको मैंने इधर ही ठीक कर लिया सो दैट आई शुड नॉट फॉरगेट। नाउ लेट अस कम टू द DQ फंक्शन। अब DQ फंक्शन रिलेटिवली आसान है। व्हाट डज इट डू? इट डिलीट्स एन आइटम फ्रॉम द लिंक लिस्ट। Again, I'm calling it linked list, but we are making a queue using this linked list here. So just imagine that this is a queue which is already intact, and our front pointer will be pointing here, rear will be pointing here. Let's assume value 6, 7, and let's say 8 is here, and we want to DQ. Again, if you notice here, in the in queue we were providing a number because we were going to insert a particular number in the queue, but in the DQ we have no option. We simply have to DQ an item which is at the front of the queue, right? So here a temporary node has been created and a variable num is declared. Basically होगा ये कि हम यहाँ पे okay, let me change the color. बेसिकली हम इस 6 को यहाँ से, इस पूरे नोड को वी वांट टू रिमूव, लेकिन उससे पहले 6 को हम सेव करना चाहेंगे किसी वेरिएबल में, क्योंकि ये हमने यूज़ भी करना है ना बाद में, जो कि हमने रिटर्न करना होगा। तो ये num is declared for that, and it says is empty. The queue is not empty क्योंकि इसमें number of items इस वक्त number of items is equal to 3। तो ये is empty का फंक्शन जो है ये तो इसने false रिटर्न कर देना है। So what will happen? It will store what it says, store in num the value which is stored in the front, right? So we will have a value of 6 in the num, and it says temporary the pointer temp should point to this location. So temporary is pointing, oh my mistake, temporary is pointing to front next, फ्रंट के नेक्स्ट को टेम्पररी पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया दोनों। नाउ व्हाट इज डूइंग, इट इज डिलीटिंग द फ्रंट। नाउ दिस फ्रंट हैज बीन डिलीटेड एंड व्हाट इट सेज दैट फ्रंट शुड बी नाउ टेम्प, यानी कि जो फ्रंट है वो टेम्पररी जिधर पॉइंट कर रहे हैं वो वहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर दें, एंड अल्टीमेटली डिक्रीज द नंबर ऑफ आइटम्स बाय 1, और यहाँ पे 3 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो वैल्यू हमने स्टोर की हुई थी, this value is going to be returned by this particular function, which is the DQ function, right? So this is how this DQ operation gets performed. और ये empty function है, ये अब मैं ठीक कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले, ये गलत था।
मतलब ये जो गलत था दैट इज एक्चुअली कॉल्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स, वन इज कॉल्ड अ सिंटैक्स एरर एंड वन इज कॉल्ड द लॉजिकल एरर। अच्छा, सिंटैक्स एरर में ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू मिस टू राइट दिस पर्टिकुलर सेमीकोलन, तो आपका कोड ही कंपाइल नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो तो सिंटैक्स एरर होता है, और वो आप सिंस यू विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट योर कोड, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बट देयर आर लॉजिकल एरर्स, जो कि थोड़ी देर पहले था कि यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स लिखा हुआ था और यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू लिखा हुआ था। तो लॉजिकल एरर में होता ही है कि आपका जो कोड गेट्स कंपाइल्ड बट इट इज लॉजिकली इनकरेक्ट, सो इट प्रोड्यूसेस रॉन्ग आउटपुट। तो लॉजिकल एरर जो है ना, वो एट टाइम्स आर डिफिकल्ट एंड कॉस्टली एज वेल, क्योंकि वो आपका सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो है वो या कोड जो है वो बन चुका होता है और उसके बाद वो डिजायर्ड आउटपुट जो है वो दे नहीं रहा होता। अच्छा, नाउ इफ यू सी हियर द फाइनल फंक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, मेक नल का फंक्शन, एंड आई वाज टोल्ड यू कि मैं आपको आखिर में कवर कराता हूँ। तो मेक नल का फंक्शन में हम बहुत सी चीज़ें रीयूज कर रहे हैं इसको सिंपल करने के लिए। व्हाट हैपेंस, एक वाइल का लूप लगा हुआ है एंड इट सेज वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी सिंपली डू व्हाट, कॉल द डी क्यू फंक्शन। तो होगा ये कि हमारे पास जब क्यू के अंदर ढेर सारे वैल्यूज होंगी, तो होगा ये कि सबसे पहले ये डी क्यू हो जाएगा, फिर ये डी क्यू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वन डी क्यू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वन डी क्यू हो जाएगा। सो अल्टीमेटली द क्यू विल बिकम null, right? So this is the dynamic implementation of the queue. Or in the main, if you see here, we have okay, wait a second. This is a class dynamic int q, which I have just explained to you. And now here in the main, we have created an instance of this class dynamic int list q. Simply एक loop x 0 से 5 तक चल रहा है, और इस iq जो इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस का ये फंक्शन इन क्यू का फंक्शन कॉल हो रहा है, और इसमें 5 वैल्यूज जो है वो क्या हो रही है, इन क्यू हो रही है। और सिंपली एक वाइल का लूप चलाया और ये वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या करें, वी आर डीक्यूइंग। दिस इज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ दिस क्लास व्हिच वी हैव क्रिएटेड टू मेक द क्यू, राइट। अच्छा, नाउ coming to the dynamic implementation, sorry, coming to the static implementation of the queue, क्योंकि डायनेमिक तो हमने लिंक लिस्ट से कर दिया है। तो इन द स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्यू देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि जिस तरीके से आप एक क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, if you see this particular slide here, so what we have done is we have anchored this rear एक जगह पे हमने इसको एंकर कर दिया और फ्रंट को हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप दो वेरिएबल्स लें, यानी कि इसको आप फ्रंट जो है ना ये फिक्स कर लें, यानी कि दिस इज एन एरे, राइट, और इसके इस एरे के इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। अच्छा, फ्रंट को भी है फिक्स्ड कि फ्रंट हमारे पास जो भी नंबर आएगा, लेट्स से 7, यहाँ पे 7 आ गया, फिर हमने इफ़ यू वांट टू इनक्यू अनदर वैल्यू, तो हमारे पास ये रेयर का पॉइंटर जो है, बेसिकली इस केस में सिंस इट इज़ एन एरे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पॉइंटर, इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटीजर वेरिएबल जिसके अंदर इस एरे का इंडेक्स पड़ा होगा, ठीक है। तो यानी कि रेयर के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम इफ यू पुट लेट्स से 8, तो अब इस वक्त रेयर का के पास इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड इफ वी अगेन पुट लेट्स से 11 इन द रेयर, तो ये रेयर 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इफ यू पुट लेट्स से 9, तो रेयर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, व्हाट वी हैव डन हियर कि हमने एंकर कर दिया है फ्रंट को, कि फ्रंट को मूव नहीं कर रहा है। अच्छा, ये इन क्यू में तो सिंपल है कि हम रेयर को प्लस प्लस करते जा रहे हैं, तो हमारा जो इन क्यू का ऑपरेशन है वो ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा डी क्यू का ऑपरेशन देखें, तो अगर हमने डी क्यू कुछ करना होगा तो हम ये 7 इसमें से रिमूव करेंगे, 7 इसमें से आउट हो जाएगा, और फिर हमें करना ये पड़ेगा एक एक आइटम को मूव करना पड़ेगा। 8 को आगे मूव करना पड़ेगा, 11 को उससे आगे मूव करना पड़ेगा, और 9 को भी एक एक। तो इफ यू सी हियर द कॉस्ट ऑफ डी क्यू ऑपरेशन यूजिंग दिस अप्रोच इज ऑर्डर ऑफ n।
which is fine, like we have no issue with that. But we can make it order of 1 using certain simple strategies. So the implementation which I am going to tell you will perform both in queue and DQ operations in order of 1 time. ये सारी बात मैंने आपको बता दी. अच्छा, अगेन इफ यू वांट टू सी कि इन क्यू इस पर्टिकुलर केस में एम्प्टी किस वक्त है, तो वी कैन इनिशियलाइज फ्रंट एंड रियर बोथ टू -1. तो जिस वक्त फ्रंट और रियर दोनों -1 होंगे तो इट मीन्स कि आपका क्यू जो है एम्प्टी है. और फुल जो है ना वो हम एक्चुअली व्हाट विल वी डू just like in the previous case where we had maintained the variable named as where is that number of items. तो इस particular case में भी we will maintain a variable named as number of items जो कि हम इंक्रीमेंट करेंगे हर इन क्यू ऑपरेशन पे और we will decrement it at every डी क्यू ऑपरेशन. और फिर उसे हमें पता कैसे चलेगा कि अभी क्यू फुल है. तो जिस वक्त number of items will become equal to the size of the queue, ठीक है, तो it means कि हमारे पास queue क्या है, full हो गया. तो if you see here, तो यहाँ पे ये कुछ strategy हम करेंगे कि हमारे पास इस वक्त ये वाला जो queue है, ये वाला queue, ठीक है, इसके अंदर front हमारे पास 0 इंडेक्स पे है, ठीक है, और rear हमारे पास किस पे है, 6 इंडेक्स पे है. बाय चांस उसमें वैल्यू भी 6 है लेकिन इंडेक्स नंबर 6 पे है. यहाँ पे अगर आप देखें उससे नीचे वाले में तो कुछ इन क्यू डी क्यू ऑपरेशन हुए, वी डोंट नो कि वो कैसे हुए, बहरहाल हो गए. और हमारे पास फ्रंट जो है वो 4 पे है, इंडेक्स नंबर 4 पे, वैल्यू उस पर 8 पड़ी हुई है. और जो रेयर है वो इंडेक्स नंबर 6 पे, वैल्यू अगेन उस पर 6 ही पड़ी हुई है बाई चांस. और फिर उसके बाद हमारे पास एक और फाइनल क्यू है जिसमें फ्रंट इज एट 5 एंड द रियर इज एट 8. अच्छा, अब ये वी विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉर ओके. अब अगर आप यहाँ पे देखें वी से दैट रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द क्यू और रिमाइंडर जो भी आ जाए हमारे पास, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे देखें अगर इस पर्टिकुलर केस में हमने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है इस क्यू के अंदर, लेट्स से 11 मैंने इंसर्ट करना है, व्हाट विल आई डू, ये रेयर है, ठीक है. मैं क्या करता हूँ कि 6 + 1 कर लूँगा विच विल बी ऑफ कोर्स इक्वल टू 7. नाउ दिस 7 आई विल बी डिवाइडिंग इट बाय size of the queue. If you see here size of the queue is, it's not 8 क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो size of the queue is 9, ठीक है. और इसका जो रिमाइंडर होगा, ऑफ कोर्स इसका रिमाइंडर ऑब्वियसली सामने नजर आ रहा है, इसका रिमाइंडर 7 है, तो हमारे पास रियर जो है इट इज गोइंग टू गिव अस दिस स्लॉट. और हम वैल्यू जो भी हमने इंसर्ट करनी है जो कि 11 थी, वी विल बी पुटिंग इट हियर, ठीक है. मैं इसको डिस्कार्ड करके दोबारा से करता हूँ थोड़ी. Okay, let us do it again for this okay, for this one, right. अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें इसमें मैंने कुछ इन क्यू करना है, ठीक है, कुछ. अब यहाँ पे इफ़ यू सी दिस क्यू तो अपेरेंटली तो यहाँ पे फुल है, लेकिन अगर आप इफ यू सी हियर ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 स्लॉट्स खाली पड़ी हुई है. अब होगा ये कि मैं करूँगा क्या, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 और इस और डिवाइडेड बाय, यानी कि रिमाइंडर का साइन है, साइज ऑफ द क्यू, ठीक है. तो यानी कि 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द क्यू. साइज ऑफ द क्यू अगर आप देख लें कितना है, 9 है ना. ये ऑल्दो दिस इज 8 लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिवाइडेड बाय 9 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा. तो इट मीन्स कि हमारे पास अब रियर जो है वो 9 की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और जो भी वैल्यू लेट्स से 99 मैंने प्लेस करनी है, तो आई विल बी प्लेसिंग 99 हियर. तो the same formula we'll be using for DQ as well, जो मैं अभी आपको कोड में बताता हूँ. तो if you see here using this formula we can perform both the in queue operations and the DQ operations in order of 1
time, right? ओके तो दिस इज एन एग्जांपल। ये सामने लिखी है मैंने, वैसे इतना टाइम लगाया इसके ऊपर। तो अदरवाइज इफ यू सी हियर रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज ऑफ द क्यू, तो दिस इज हाउ दिस इन क्यू ऑपरेशंस गेट्स परफॉर्म। नाउ हाउ टू डिटरमिन एम्प्टी एंड फुल क्यू, देयर आर सो मेनी अप्रोचेस, लेकिन मैंने आपको सिंपल अप्रोच बताई कि आप नंबर ऑफ आइटम्स को मेंटेन रखें, इन क्यू पे प्लस प्लस करें, डी क्यू पे उससे माइनस माइनस करें, और सिंपली उससे आपको पता चल जाएगा एम्प्टी है या क्यू एम्प्टी है या फुल है। अगर ऑफ कोर्स नंबर ऑफ आइटम्स की वैल्यू 0 हुई तो हमारे पास क्यू जो है वो एम्प्टी होगा, और अगर नंबर ऑफ आइटम्स की वैल्यू क्यू के साइज के इक्वल हुई तो इट मीन्स द क्यू इज फुल। अच्छा, अब इफ यू सी द डिफरेंस कि जब जिस वी आर डूइंग द डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्यू, जो कि हमारे पास लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन थी, तो वहाँ पे हम फुल इज फुल की जो है ना, इस फुल का जो फंक्शन है वी आर नॉट यूजिंग दैट, ठीक है। लेकिन सिंस दिस वन इज द स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्यू, जिसमें एक एरे पहले से हमारे पास सॉरी सॉरी एक एरे हमारे पास पहले से बनी हुई होगी, तो जो कि बेसिकली क्यू के लिए बनी होगी, तो वो फुल भी हो सकती है। इसलिए वी आर इंटरेस्टेड कि हम इस फुल की जो है ना, इस फुल का फंक्शन हमारे पास मौजूद हो। नाउ दिस इज द कोड, अगेन दिस इज क्लास इंट लिस्ट इंट क्यू। ये द फर्स्ट वेरिएबल इज द क्यू एरे। बेसिकली एरे का जो नाम होता है वो एक पॉइंटर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया है। दिस इज द साइज ऑफ द क्यू, these are two integer variables for the front and rear, and this is another integer variable which will track the number of items in the queue. ये क्यू का कंस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर है। मैं इन फंक्शंस पे जाता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। और फिर अगेन दिस इज एम्प्टी एंड इज फुल फंक्शन, और ये क्लियर का फंक्शन है। बेसिकली ये सब कुछ एम्प्टी कर देगा क्यू के अंदर। नाउ इफ यू सी द कंस्ट्रक्टर, इन द कंस्ट्रक्टर हमें एक वेरिएबल s मिला है जो कि क्यू का साइज है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ न्यू इन टाइप एरे ऑफ साइज s, ठीक है। और हमने कह दिया कि क्यू का साइज क्या हो जाएगा, s हो जाएगा फ्रंट एंड रियर। इनिशियली वी आर असाइनिंग देम अ वैल्यू ऑफ -1, और कंस्ट्रक्टर के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स हमने असाइन कर दिए 0, क्योंकि इस वक्त क्यू में कोई चीज़ इन क्यू नहीं है, ठीक है। नाउ इन दी इन दी डिस्ट्रक्टर इफ यू सी है, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे क्यू जो कि एक बेसिकली हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर की हुई थी, इसको हम पूरी की पूरी एरे को हम क्या करें, वी आर डिलीटिंग इट, राइट। नाउ विद द इन द इन क्यू फंक्शन, सबसे पहले वी आर चेकिंग इज फुल, तो सबसे पहले हम इस फुल के फंक्शन पे जाते हैं। इज फुल, दिस इज फुल, और इस फुल में देख रहे हैं अगर नंबर ऑफ आइटम्स इज लेस देन द साइज ऑफ द क्यू, तो लेस देन है तो इसका मतलब है फॉल्स, यानी कि फुल नहीं है, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इज फुल हो जाएगा। तो अगर आप देखें इज सॉरी इन क्यू इज फुल देख रहा है, तो इस फुल में नंबर ऑफ आइटम्स तो इस वक्त हमारे पास 0 है, विच इज लेस देन साइज ऑफ द क्यू, जो कि हमारे पास 5 6 7 जो भी हमने दिया होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में द क्यू इज फुल, ये वाला फंक्शन मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होने वाली, तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। और ये रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, इसको जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यू साइज हमारे पास है 6, ठीक है, और इनिशियली रेयर हमारे पास है -1, ठीक है। तो -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्लॉट है उस जगह पे हमारे पास आइटम जो है वो क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा, राइट। तो क्यू रेयर में आइटम स्टोर कर देंगे और नंबर ऑफ आइटम्स को क्या कर देंगे, प्लस प्लस। और डी क्यू के ऑपरेशन में भी सिंपली उसी तरह ही हो रहा है। इन क्यू में हम इस फुल देख रहे थे, और डी क्यू में हम क्या देख रहे हैं, इज एम्प्टी देख रहे हैं। और इज एम्प्टी के फंक्शन को देख लेते हैं। इज एम्प्टी के फंक्शन को सिंपली देख रहा है, अगर नंबर ऑफ आइटम्स 0 होंगे तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, यानी कि एम्प्टी नहीं है, और अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अदरवाइज फ्रंट को front की वैल्यू को it will be computing like this, and I'm not explaining it again because earlier I explained it in detail here. और उसके बाद उस आइटम को जो भी फ्रंट पे पड़ा है उसको स्टोर कर रहा है नम में, और उसके बाद क्या कर रहा है,
नंबर ऑफ आइटम्स को माइनस माइनस कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस टिकी ऑपरेशन इज परफॉर्म इन द स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्यू, राइट। और क्लियर के फंक्शन में कोई लूप शुप कोई नहीं है, सिंपली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर असाइनिंग -1 टू फ्रंट एंड एयर एंड नंबर ऑफ आइटम्स हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली in the linked list based implementation we had to delete the nodes, लेकिन array के केस में array फिर भी मौजूद रहती है, तो हम सिर्फ वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, हम रीसेट कर रहे हैं। तो होगा ये कि पुरानी वैल्यूज पड़ी हुई होंगी, लेकिन जब हम नई वैल्यूज इसमें इंसर्ट करेंगे तो वो पुरानी वैल्यूज के ऊपर ओवरराइट हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ इन द स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन द क्यू इज क्लियर्ड। Now if you see here, we have created an instance of this class int q, और ये हमने 5 इसको पास किया है, तो होगा बेसिकली ये कि हमारे पास एक एरे ऑफ साइज 5 जो है, वो बेसिकली इसको मैं एरे नहीं कहना चाहिए मुझे, दिस इज अ क्यू ऑफ साइज 5, 0 1 2 3 एंड 4, साइज 5 का क्यू बन जाएगा। और इस लूप को यूज़ करके वो इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, आप बगैर लूप के भी इसको ऑफ कोर्स कर सकते हैं, और इस लूप को यूज़ करके ये वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, डी क्यू कर रहे हैं क्यू के अंदर से। So this is the output of the main this function, sorry, this code, which is again using the IntQ class. So that's all about queues discard, right? So if somebody has a question, he can simply he or she can simply unmute the mic and ask questions. Okay. अगर आप लोग सो रहे हैं तो आप लोग जाग जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। एज इट इज आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑन यूट्यूब, आई होप कोई आपका इतराज ना हो इस पे। राइट, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना अच्छा पढ़ाया कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो तो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम सॉरी फॉर बीइंग अ बिट क्विक, क्योंकि बट आई फील कि ये चीज़ें थोड़ी रह जाएंगी, तो आई हैव टू कवर इट। I'm just making sure that what I'm saying it is getting recorded so I can upload it on YouTube. Okay, let me present trees now. This is another topic, but before starting this particular topic, although I am recording this particular lecture and I will try कि मैं इसको I will try नहीं बल्कि I will do it कि मैं YouTube पे इसको रख दूँ, और फिर I will be sharing the link with you via email. But I've got previous lectures recorded as well. I will see कि अगर Q के ऊपर मेरे वो lectures recorded हों तो instead of this one मैं आपको वो share करूँगा. But in any case you will get some copy of the lecture which you can refer to later, क्योंकि इस वक्त तो आप लोग सारे के सारे जो है ना वो सुमन बुकमन हुए हुए हैं, तो बट चलें कोई नहीं। अब let us move on to the next topic which is trees, ठीक है। अच्छा ये सारा तो कवर, चल let's see what happens. अच्छा जिस तरह हमारे पास we have got a lot of data structures. For example we have an array, ठीक है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमने किया। वैसे हमारे पास वी हैव गॉट अ लिंक लिस्ट, द लिंक लिस्ट इज अनदर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इन्हीं एरेज और लिंक लिस्ट को यूज करके हम स्टैक्स और क्यूज, ये राइटिंग और स्पेलिंग के लिए माजरत, ठीक है, ये हम बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन दीज आर नॉट द ओनली डेटा स्ट्रक्चर्स विच वी हैव येट another data structure among a lot of data structure जिसको हम कहते हैं trees। तो trees में हमारे पास logically अच्छा एक चीज़ होती है logically, एक चीज़ होती है physically, ठीक है। तो फिजिकली मेमोरी में उस तरह नहीं मौजूद होगा ट्री जैसा मैं बनाने वाला हूँ, लेकिन लॉजिकली इसको समझने के लिए ट्री में हमारे पास एक रूट नोड होता है और उसके बाद उसके वी हैव गॉट चाइल्ड नोड्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ ट्री इज मेंटेन्ड, और वी कैन सी इट लॉजिकली यूजिंग अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी में टोटली डिफरेंट तरीके से पड़ा होता है, लेकिन बस दिस इज अ ट्री। सो अ ट्री इज एक्चुअली अ हायरार्किकल data structure where each position in the tree is called the
नोड। ठीक है, मैं अब यहाँ पे एक ट्री बना लेता हूँ और अगर आप देखें तो यहाँ पे दिस वन इज अ नोड, दिस वन इज अ नोड, दिस वन इज अ नोड। जिस तरह हम लिंक लिस्ट के अंदर एक सेल को नोड कहते थे, ठीक है, तो इसी तरह ट्री के अंदर भी एक पोजीशन जो है दैट इज कॉल्ड अ नोड। Tree, the top of the tree is called the root. Now if you see here, this is the top of the tree and this is going to be root. अच्छा, लिंक लिस्ट के अंदर जिस तरह हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट नोड जो होता है वो एक वो उसका हेड का नोड होता है, तो इसी तरह इन द ट्री द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोड इज द रूट नोड ऑफ द ट्री। अच्छा, फिर द नोड्स इमीडिएटली बिलो द नोड, एनी नोड, चाहे वो रूट हो या कोई और नोड हो, दे आर कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ द नोड। यानी कि इस नोड का, चलो मैं एक और बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नोड है जिसमें ए है, एक और नोड है जिसमें बी है, एक और नोड है जिसमें सी है। चलो एक और बना लेते हैं, बी है। तो ये डी, बी और सी दे आर चाइल्ड नोड ऑफ द नोड ए। ठीक है, और जो ए है वो बी का और सी का और डी का ये पेरेंट नोड है। पेरेंट नोड कहते हैं फादर मदर जो भी आप कहना चाहें, लेकिन पेरेंट विल बी मोर अप्रोप्रिएट देयर। ठीक है, और इफ यू सी हियर दिस ए इज द एंसेस्टर ऑफ नोड डी बी सी, और नोड डी बी सी जो है वो डेसिडेंट्स हैं नोड ए के। सो दिस अच्छा, फिर इसमें जो नोड्स सेम लेवल पे होंगे, अगर इफ यू सी हियर ये दो नोड्स जो हैं ये दो सेम लेवल पे हैं, बेसिकली इनका पेरेंट कॉमन है, इट मींस कि दे आर सिबलिंग्स, बहन भाई हैं, भाई भाई हैं या बहनें हैं, व्हाटएवर, तो बेसिकली दे आर सिबलिंग्स। अगर नीचे जाके देखें तो दीज टू आर सिबलिंग्स। ठीक है, इनका जो पेरेंट नोड है ना वो कॉमन है। ये दो ऐसे तो सिबलिंग नहीं है डायरेक्ट, लेकिन ये इनडायरेक्टली अगर देखें तो इनके ग्रैंड पेरेंट जो है वो सेम है, तो इन दैट वे they can be siblings. But otherwise, if two nodes have same parent, then they are called sibling. ऐसे ये जो concept है the height और depth of the tree, ये थोड़ा सा tricky है। For example, ये tree है, इसकी अगर आप देखें, मैं इसको कहता हूँ level 0, इसको मैं कह देता हूँ level 1 और इसको मैं कह देता हूँ level 2। Now at times people started from 0 1 2, तो इसको ये they will say कि इसकी height जो है वो क्या है 2 है, but at times in some books and in some literature they started from 1, कहते हैं level 1 है, ये level 2 है और ये जो है ये level 3 है, and then they say that height of this particular tree is 3। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। यूजुअली जो है वो 1 2 3 वाले मेथड यूज होता है। ठीक है, बट जहाँ पे हमने जो यूज़ किया तो आई बी लेटिंग यू नो दैट। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्री वेयर वी हैव दिस रूट नोड का चाइल्ड ए है, नोड बी इसका चाइल्ड है, फिर ए का देखें सी और डी इसके चाइल्ड है। नाउ इफ यू सी नोड सी एच एंड आई, नोड सी एच एंड आई, ये इस ट्री के अंदर एक सब ट्री बना रहे हैं। इस तरह और भी है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो बी के पास है दिस इज, ये एक ट्री के अंदर एक सब ट्री है, जैसे एक लिंक लिस्ट के अंदर सब लिंक लिस्ट भी हो सकती है, तो दिस इज सब ट्री विद इन अ ट्री। ठीक है, नोड एच एंड आई, यहाँ पे अगर आप देखें एच और आई दे आर सिबलिंग्स, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें नोड ई एफ एंड जी दे आर ऑल्सो सिबलिंग्स। यहाँ पे देखें नोड जे और के, ये भी सिबलिंग्स है। ठीक है, तो इफ इस ट्री की डेप्थ अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज लेवल 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये इसकी डेप्थ क्या होगी हमारे पास 4 होगी, बट इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम 1 तो इसकी डेप्थ हो जाएगी 5। अच्छा, ट्री की जितनी डेप्थ कम होती है उतना ज़्यादा ट्री जो है ना वो एफिशिएंट होता है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इफ़ यू वांट टू सर्च समथिंग तो हम पहले इधर सर्च करेंगे, फिर हम इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, सबसे आखिर में डेप्थ बिल्कुल बॉटम पे आएंगे। तो जितनी कम डेप्थ होगी तो आपको उतना कम नीचे जाना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा आपको नीचे जाना पड़ेगा। और जब आप ज़्यादा नीचे जाएंगे तो ऑफ कोर्स उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ट्री की जितनी डेप्थ कम होगी वो उतना अच्छा होता है। एक चीज़ आई थिंक आई मिस्ड,
वो ये है कि एक नोड इन द ट्री विच हैज़ नो चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल ये नोड देखें, नोड टी, इस नोड का कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। या ओके, लेट मी रीसेट इट। नाउ ये जो डी है इसका कोई चाइल्ड नहीं है। फिर इसी तरह ये जो नोड एल है इसका कोई चाइल्ड नहीं है। नोड एच और नोड आई जो है इनका, अच्छा ऐसे नोड्स जिनका कोई चाइल्ड नोड नहीं होता, ऐसे नोड्स को हम कहते हैं लीव्स, ठीक है। द नोड हैविंग नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड द लीफ ऑफ द ट्री, ठीक है। इधर और भी है, फॉर एग्जांपल ये नोड देखें ई, इसका कोई चाइल्ड नहीं, दिस इज अ लीफ। नोड जे, दिस इट हैज नो चिल्ड्रन, इट इज अ लीफ। नोड जी, इसका कोई चाइल्ड नहीं, दिस इज अ लीफ। लेकिन नोड बी अगर आप देखें तो देखें इसका तो चाइल्ड है, तो दिस इज नॉट अ लीफ। और कोई देख लेते हैं नोड, और फॉर एग्जांपल ये रूट है, दिस इज नॉट लीफ, दिस इज नॉट लीफ, ठीक है। तो बट आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ लीफ एंड नॉन लीफ इज क्लियर टू यू। राइट, आई थिंक दिस इज एनफ, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद थक गया हूँ। तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, लेट वेट अ सेकंड, लेट मी स्टॉप दिस।